all from the chemistry honors first year. My name is Pushpa. But have you heard? Like there is the puja of one hostler who is the Mr. Not Miss, he's Miss Fresh, Mr. Fresher. He comes from the hostel taking some thali and all the rituals which we are doing in the puja in our house. Like that they are doing puja in the Vitri, or like they sing the Aarti of Damdami Mata and all. It is believed that the who is who do that puja will get girlfriend in 6 months, or I think 3 months. I like that. Lose the virginity. Like this. It's not just the one who does the puja, also whoever gets the water that is splashed from there, whoever gets that water on their body will lose their virginity. That's the belief associated with Vitri. What do you guys think about that? I do not think that it is possible. Did you attend the puja last year? Yeah. How was your experience? It was not that good because the puja was not supposed to happen, but it happened. You are basically objectifying women, even men in the puja. That's why one of the main reasons in a society where feminism should be the key to move forward, we are objectifying women and mostly focusing on their body. That's why I don't like. As per what I have heard that it's been going on for quite a while, 40 plus years or so. As per the recent development, I've also heard that they've included, instead of the posters of a female being placed, couples are being placed. And at the same time, I also heard that recently from some of my hostel friends that the pictures of gay couples as well as lesbian couples are going to be included, which I feel is an inclusive part and which is something to do with the good part of the Vitri Puja. But looking at the sexist part of it, as of what the history tells us, the history of Vitri Puja tells us, it's even if it's not completely abolished or something, but we need to bring certain change, not just by name or theory, but by practically how it really is done. And in that way, we have to sympathize with both the sides. Okay, are you aware of the protests going Yeah, on? I'm aware of the protests that's going on. Are you part of that? Not really. Okay, so you stay away from the politics. I try to stay away from both the sides, because I'm vulnerable from both sides, to be honest. Okay. Okay, so are you planning to go to the Vitri Puja this year? I wanted to see how it is, because I've heard it from opinions of people that this is sexist, this is not right, this is right, but to the regard, but I have not seen it from my eyes. So I wanted to experience and see it from my eyes, but unfortunately I have a competition on that day for my society, so I won't be able to attend. भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्डोम्स का यूज जो होता है उसको प्रमोट करते हैं। ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है कि कॉन्डम से हम सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में, मतलब सेक्सुअल डिजीजेस के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। आई मीन तुम कॉन्डम में पानी डाल के उसको पेड़ पे लगाते हो, जिससे क्या अवेयरनेस फैलता है? आई मीन इफ यू रियली वांट टू प्लीज डिस्ट्रीब्यूट कॉन्डम्स ऑन वीट्री, देन दिस पूजा वाला चीज जो बार बार कहा जा रहा है कि वी गेट इट, कि जो मिस्टर फ्रेशर है वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो, कोई भी हो, वो मुस्लिम भी हो, वो भी आके कर सकता है वीट्री पूजा, हम मानते हैं ये चीज। लेकिन उसको जनेऊ पहनाना और इस टाइप का एक अटायर लाके, पूरा ब्राह्मण का अटायर पहना के, जनेऊ पहना के उसको पूजा करना, ये बार बार इस टाइप का चीज को इन्फोर्स करता है कि मतलब वो लोग ही जो है मतलब सबसे ऊपर है। हिस्टोरिकली जनेऊ सब लोगों ने नहीं पहना है, मतलब women have not had access of wearing जनेऊ, for that matter lower caste have not had access of wearing जनेऊ। नंबर 2 बात मैडम ने कहा कि ब्राह्मणिज्म दिखा रहे हैं हम, कि जनेऊ धारण करा लेते हैं। ये सबसे पहली बात तो हमारा मिस्टर फ्रेशर है ना, किसी की जात पात देख करके नहीं बनाया जाता, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसका ये देखा जाता है उसकी एबिलिटीज कितनी है, कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, उस चीज में बात करते हैं हम लोग। और ये बात जो उठी है कि जनेऊ पहना करके हम ब्राह्मण बनाना चाहते हैं, हम ब्राह्मण नहीं बनाना चाहते। आप कहो तो हम मौलवी बना देंगे, टोपी में पहना देंगे। तो
पूजा का इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी तरह से हिंदुज्म और किसी भी उसको मतलब रिलीजन को सपोर्ट करने वाली चीज़ है। जस्ट ये है कि किसी भी चीज़ को जो हमें अच्छा दिखाना होता है या फिर उसको औरों से स्टैंड आउट करना होता है ना, तो हम इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं। लाइक जैसे इंडिया में आप चले जाओ 14 फेब को आपको जगह जगह पता चल जाएगा मॉल्स में, लाइक कि वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन। तो कुछ ना कुछ मतलब एक होता नहीं है मार्केटिंग स्कीम्स के थ्रू, लाइक उसको इस तरह से थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए उसमें क्या है वी ट्री पूजा डाल दिया। अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स को बताओगे कि भाई हमारे कॉलेज में वी ट्री पूजा होता है, वो सबसे कहते हैं वी ट्री पूजा ये क्या है। फिर आप बताओगे कि ये वर्जिन ट्री पूजा है, तो वो एक क्यूरियोसिटी बनती है। उसी चीज़ को करने के लिए इसका नाम वी ट्री पूजा कर दिया है। और इसका किसी रिलीजन से, मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि इसका किसी उससे लेने का कोई नहीं है। यार आप ये बताओ, जिस तरह का रिचुअल्स इसमें होते हैं, क्या हिंदुज्म में इस तरह के रिचुअल्स होते हैं? And this Damdami Ma is the woman actress जिसका हर साल highest sex appeal होता है according to the men in hostel. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज ऐसा पूरा ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ women's body because you're treating women's body as an object which can satisfy male का sexual desire and she is meant for that only. उसका कोई और पर्पस नहीं, उसका कुछ और नहीं। दैट इज व्हाई अ वुमन जिसका हाईएस्ट सेक्स अपील है इज ट्रीटेड एज द आइडियल सेक्सुअल गॉडेस और व्हाटएवर, जो कि मतलब वर्जिनिटी लूज करने में लोगों का हेल्प करेगा, व्हाटएवर व्हिच इज द पूरा आइडिया बिहाइंड दिस वीटरी। So that is why it is ऐसा sexist, that is why it is misogynist, that is why it is actually objectifying women's body. हाँ, दमदमी माई से दिक्कत है भाई साहब। एक एक्ट्रेस थी शायद दिशा पटानी थी, उनका जब तस्वीर एक वहाँ पे लगाई गई थी तो उन्होंने खुद कहा था मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि हिंदू कॉलेज में मेरा वीटी पूजा पर पोस्टर लगाया गया। अगर जिसका हम पोस्टर लगा रहे हैं, जिसका हम फोटो लगा रहे हैं, उसे दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? क्या मैडम उनकी कमेंट आई आप पढ़ सकते हो। दमदमी माई से दिक्कत है, फिर दिक्कत जिसे है भाई साहब वो ये बता दो कि दमदमी माई ना बना करके दमदमी देवता बना देंगे हम। नाउ पीपल सेड कि एक काम करते, गर्ल्स हॉस्टल आया है तो हम मेन का भी फोटो लगा देते हैं तो दैट ये ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होगा। बट द थिंग इज कि इफ यू पुट अ वी शेप का कोई परफेक्ट मेल का बॉडी आल्सो, दैट इज एक्चुअली पुटिंग प्रेशर ऑन मेल्स आल्सो, लाइक कि मतलब यू हैव टू, मतलब ऐसा तुम इतना सेक्सी लगोगे तो ही women will like you, otherwise women will not date you। और इस टाइप का जो समाज में ऑलरेडी existing notions जो है, it enforces that when it was decided last year कि we'll put ऐसा एक couple का फोटो, विराट अनुष्का का जो भी उस साल सबसे रोमांटिक कपल रहा होगा, we'll ऐसा unanimously decide and put it and then we'll worship that couple। But then it was also कि it promotes a very heteronormativity type of चीज की, मतलब समाज में जो आइडियल रिश्ता है that is only going to be between a male and a female। कपल की जो बात है ना, आर्टिकल 377 की बात करी है इन्होंने कि भाई साहब 377 का कोई हम लोग नहीं लगाते, हिट्रोसेक्सुअलिटी को प्रमोट नहीं करते। आप मुझे जितने विद्वान लोग हैं, आप मुझे ये बता दो कि जो हिट्रोसेक्सुअलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके लिए एक दरवाजे खोले हैं, जो आर्टिकल 377 हटाया है, वो कब हटाया है, किस डेट को हटाया है, किस डेट को हटाया भाई साहब? 2016 या 17 में हटाया है। और आप एकदम है ना वो करोगे कि भाई साहब ये नहीं हुआ, मुद्दा बना लेते हैं। इस बार कर रहे हैं ना, तो उसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन या उस पर ऑब्जेक्ट करने की क्या जरूरत है तुम लोगों को? भाई अगर आप उस मतलब वी ट्री के उसमें होते तो आप उसमें देख पाते कि इसमें एक पोस्टर LGBTQ का भी था और जो दूसरा पोस्टर था उसको हटा दिया गया था और उस पर सिर्फ जो LGBTQ का था उस पर सिर्फ रेनबो था। तो इसमें अपने आप ही एक बात ये हो जाती है कि आप जिन्हें जो बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें तो LGBTQ को भी इंक्लूड किया गया था। So ऐसा कुछ नहीं है ऑब्जेक्टिफिकेशन। It's not just the problem with Hindu college. I'll talk about like Stephen's right across the road. It is personal, be it political. It's not one person's issue. We always talk about how it is just a small issue, like it's just about our college. It's not. We had Anga Oath. People talk about Stephen's as it's a very progressive, like, you know, liberal arts college. We had Anga Oath until last year. And what I want to know, I mean, make a point is that like a movement happened and it stopped. Not that like, you know, overnight like patriarchy stopped, but it did make a difference. And movements like this make a change. This kind of solidarity across the college.
पंडित